Hello, dear students. So, after a class test, welcome back in our tutorials. Yes, today onwards we are going to see your unit test ka portion. Okay. So, before moving to that, I hope all of you had a great class test. Yes, it is very easy. I hope you all have attended it. ठीक है. Okay, so before the class test we are finished with the one chapter, that is gravitation, and we are left with its numericals. ठीक है. Okay, so today we are going to see some examples of your numericals from chapter 1, gravitation. Okay, yes, so if you want to note down, you can note down in your notebook. ठीक है. Okay, so here is the very first question, and we are going to see this question based on the formula, that is gravitational force. Okay, while teaching this content I have already told you that this formula is very important for your numericals. ठीक है. So F is equal to G m1 m2 upon r square. पहले देखते हैं ये इसको क्या बोलते हैं. F मतलब क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स. Okay, G is what? G is universal gravitational constant. M1, M2, these are the masses of any two objects. Okay, and R is what? R is the distance. ठीक है. समटाइम्स R की जगह पे D भी रहता है, स्मॉल d भी रहता है, बट उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. D मतलब भी डिस्टेंस होता है एंड R मतलब इज़ ऑल्सो डिस्टेंस. ठीक है. ओके, नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. सूरज एंड सुमित आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. ओके, तो डिस्टेंस मतलब यहाँ पर R लिया है, तो R इज इक्वल टू हाउ मच? 1 मीटर. ओके, येस. देयर मासेस आर 75 kg. M1 वी आर गोइंग टू टेक 75 kg and 80 kg respectively. Okay, so M2 we are going to take 80 kg. ठीक है. So what we have to find out over here, that is what is the gravitational force between them. ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, आपको F जो है वो फाइंड आउट करना है. सो F इज इक्वल टू हाउ मच? सो सिंपली वी आर गोइंग टू टेक दिस फॉर्मूला. F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. एक यहाँ पर है वो ध्यान में रखना है, दैट इज़ G का वैल्यू. G का वैल्यू जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11. ओके, सो दैट इज़ G का वैल्यू वी हैव पुट ओवर हियर. इंटू M1 कितना है 75 kg एंड M2 कितना है 80 kg, डिवाइड बाय R स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर एंड न्यूटन. ठीक है. सो आफ्टर द कैलकुलेशन 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा. एंड व्हेन यू आर गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन यू विल गेट 4.002 इंटू 10⁻11 -7 न्यूटन. ओके, सो व्हाट आंसर वी गॉट? The gravitational force between Suraj and Sumit is 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन. ओके, ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल ही है. दिस इज़ द बेसिक. दिस यू विल गेट इन योर थिंग सॉल्व एग्जाम्पल in your textbook. If you have textbook, then it is there on textbook का page number 6. Okay, yes. So this is one kind of example. Now we are moving to the another example, that is here I have taken the 6th question of your unsolved question. Okay, page number 15. Yes, so the question says the masses of the earth and moon are 6 into 10⁻24 kg. तो M1 we are going to take 6 into 10⁻24 kg and यहाँ पर 7.4 into 10⁻22 kg. तो M2 कितना है? 7.4 into 10⁻22 kg. Okay, the distance between them is 3.84 into 10⁻5 किलोमीटर. तो डिस्टेंस मतलब R होता है. येस, सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू टेक ओवर हियर, दैट इज़ हियर यू कैन सी R इज़ इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर. स्टूडेंट्स, किलोमीटर का हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक दैट इज़ 10⁻3. ओके, अगर
किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना होता है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻3. देन व्हाट वी विल गेट ओवर हियर 3.84 इंटू 10⁸ मीटर. ऑलरेडी 5 था, फिर हमने 3 ऐड कर दिया तो 8 हो गया. ओके, एंड जी का वैल्यू विल रिमेन एज इट इज़, दैट इज़ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg/2. Okay, so what we have to calculate the gravitational force of attraction between the two. That means F we have to calculate. Okay, so here we have to calculate F का value. सबसे पहले हम वैल्यू पुटअप करेंगे एंड फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, दैट F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. जी का वैल्यू तो कांस्टेंट रहता है. ओके, m1 कितना है 6 इंटू 10⁻24. येस, m2 we have put it over here and r का वैल्यू 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, बिकॉज r का स्क्वायर रहता है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर उसका स्क्वायर किया है नीचे, ये यू कैन सी. यस, ओके, तो 8 2 16 यहाँ पर आ गया. ओके, देन हमने ये जो पावर है सबको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया एंड जो एक्चुअल वैल्यू है उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. तो यहाँ पर अभी देखो 24 - 11 इज़ 13 एंड 22 - 16 यहाँ पर वी विल गेट दैट इज़ 6. ओके, सो हियर यू कैन सी हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया एंड सब पावर अप को ऐड माइनस करके हमको क्या मिला 10⁻19. ओके, व्हेन वी डिवाइड दिस वी विल गेट 2.009 into 10⁻20. Okay, then if we have shift this points, then we will get 2 into 10⁻20 Newton. Okay, so the gravitational force of attraction between the two masses is how much? 2 into 10⁻20 Newton. ठीक है? Yes, so this is one kind of example. Okay, then we are going to see the numericals on the topic free fall and escape velocity. Okay, yes, so here this question says, ये आपका टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1. An object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter. Okay, height, that is s is equal to 5 meter. Okay, then what is the value of g on the planet? ओके, तो 5 सेकेंड मतलब क्या दिया है हमें, टाइम भी दिया है, दैट इज स्मॉल t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. ओके, सो वी ऑलरेडी नो दैट फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज टेकन एज 0. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू टेक इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज इक्वल टू 0. वी हैव टू फाइंड आउट g. ओके, सो वी आर गोइंग टू सिंपली पुट अप दिस फॉर्मूला दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. s का वैल्यू है 5 मीटर इज इक्वल टू u का वैल्यू है 0 इंटू t क्या है 5 सेकेंड. ओके, प्लस हाफ इंटू g हमें फाइंड आउट करना है इंटू 5 सेकेंड का स्क्वायर. ओके, यस, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ओके, 5 का स्क्वायर होता है 25. ओके, ये सेकेंड का स्क्वायर एंड हियर ये 2 जो है यहाँ पर रहेगा इंटू ये g यहाँ पर. वी आर गोइंग टू शिफ्ट द टर्म्स, ये 5 मीटर को यहाँ पर लेके आएंगे एंड इसको वो वाली जगह में वहाँ पर. सो g को हम सेपरेट करेंगे अभी. सो 5 इंटू 2 मीटर डिवाइड बाई 25 का सेकेंड स्क्वायर. सो 5 1 सा 5, 5 5 सा 25. ओके, सो 5 से डिवाइड करेंगे हम 2 को, देन वी विल गेट 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो g इज इक्वल टू हाउ मच 0.4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. ठीक है? ओके, सो दिस आंसर वी गॉट ओवर हियर. ओके, yes, now the next question, that is the 5th question of your textbook. A ball falls off a table and reaches the ground in 1 second. So t is equal to 1 second. टाइम दिया है. ओके, assuming g is equal to 10. अभी यहाँ पर g का वैल्यू भी दिया है, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट इट स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड फ्लोर
एंड द हाइट ऑफ टेबल. स्पीड मतलब क्या होता है v, ओके, एंड s इज़ व्हाट हाइट. तो सबसे पहले हम v को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज स्पीड को. सो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. वी हैव लर्न दिस फॉर्मूला. u हियर also u, that is initial velocity, we are going to taken as 0. So 0 plus g कितना है? Yes, 10. Okay, into t is how much? 1. So what answer we will get over here? 10 meter per second. Okay, yes. Then height of the table, here we are going to see this formula. Okay, we are going to take it. v square is equal to u square plus 2gs. सो v का वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, दैट इज़ 10. सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, दैट इज़ 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी भी कितना है 10 है, इंटू एस हाइट हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 10 टू ज़ा 20 सेकेंड. येस, सो देन वी आर गोइंग टू डिवाइड 100 डिवाइड बाई 20, वी विल गेट 5 मीटर. So here we have found out the two values, that is v is equal to 10 meter per second and s is equal to 5 meter. Okay, yes. Then the next one, that is escape velocity. escape velocity का फॉर्मूला हमें ऐड करके बहुत ही ईजी है, ये हमें यहाँ पे पुटअप करना है. ये मैंने टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लिया है, सॉल्व क्वेश्चन. So calculate the escape velocity on the surface of the moon given the masses and radius, that is mass is equal to 7.34 into 10 raised to 22 kg. Yes, and after that here radius जो दिया है that is 1.74 into 10 raised to 6 मीटर. g का वैल्यू हमेशा हमारे पास रहता है, that is g is equal to 6.67 into 10 raised to 11 Newton meter square kg raised to 2. So what we have to find out? Escape velocity. Okay, yes. So escape velocity का फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ 2gm अपॉन r. हमें सिंपली रूट में ये फॉर्मूला डालना है, उसके वैल्यूज़ डालने हैं हियर, एंड वी सिंपली हैव टू पुट g ओवर हियर. m कितना है? yes, m over here and r over here. Okay, so what answer we will get over here? That is 2.37 kilometer per second. So escape velocity on the moon is 2.37 kilometer per second. Okay, so this is a numerical which is from your topic escape velocity. Okay, so this is about your numericals. I have given one question for your homework. You can आप अपने नोटबुक में सॉल्व करके रखो, ठीक है. So the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg. Okay, तो mass दिया है m1. The distance between the earth and the sun is 1.5 into 10 raised to 11. Distance दिया है, that is r का वैल्यू दिया है. If the gravitational force between the two is 3.5 into 10 raised to 22 Newton, gravitational force मतलब f दिया है. Yes, what is the mass of the sun? तो हमें m2 को फाइंड आउट करना है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे? f इज़ इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. सो यूज़ दैट फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस न्यूमेरिक. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.